बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। My dear students, I am here Dr. Muhammad Javed Aftab, your course instructor for the course of Curriculum Adaptation with Special Needs, Semester 4, B.Ed Honors Special Education. Dear students, today this is the lecture number 8, where we will discuss about the curriculum adaptation for the children with Down syndrome. Dear students, Down syndrome can affect an individual ability to be successful in a typical classroom in a number of ways. It impacts on cognition, which include intelligence. Not every learner with Down syndrome tests lower on IQ test, but mild to moderate intellectual disability is not uncommon. Also, Down syndrome can also be the source of certain physical challenges. A student's hands and fingers may be smaller, which can make writing difficult. Vision problems are possible, and hearing impairment are also common. In fact, hearing impairment is one of the major causes of early language delays in infants with Down syndrome. Dear students, Down syndrome can also interrupt speech production and cause difficulties with processing auditory and visual informations. Language deficit may affect reading comprehension, and interpreting figurative language can be especially difficult. Differences in social skills and awareness may also lead to challenges in interaction with peers. There may be issues with executive control of working memory that can make it harder for the learner with Down syndrome to navigate instructions. It might also be challenging to process complex textual information without breaking it down into smaller bits, smaller pieces, and recording steps by step notes on paper. We have to come formally about how we can the different skills and the different subject can be adapted for the children with Down syndrome. First of all, we have to discuss about the story writing. I have write down the process into the 4 areas. First of all, I have write down the skill that typical children have to be expected to learn. The second one is the option what the children with Down syndrome can do, and the third one is the process, and the fourth one is the demonstration कि वो उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करके दिखाएंगे. तो आते हैं सबसे पहले हमारे पास है स्टोरी राइटिंग. What the typical children and the normal children can do. What the other students are expected to learn means typical children आज जा अपने नॉर्मल चिल्ड्रन कह सकते हैं. अगर हम उन्हें एक स्टोरी या किसी इवेंट के बारे में जो है वो लिखवाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो एक स्टोरी लिखें. नॉर्मल चिल्ड्रन का जो है कि वो हम उन्हें एक इवेंट के बारे में लिखने को कहते हैं, या कोई हम एक जो है वो स्टोरी लिखने को कहते हैं. तो हमारे पास क्या है कि उन बच्चों से हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कि एक वो कंप्लीट स्टोरी राइट डाउन करें प्रॉपरली फॉर्मेट के अंदर, और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि इनिशियल है, बॉडी है, और देन फिर फाइनल है, फिर कंक्लूजन है, और फिर वो फाइनल कमेंट दें
ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल बच्चों से। ओके, बट यहाँ पर अब हमारे पास ये है कि जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। उनसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे हैव टू ओनली रिकग्नाइज द थ्री थिंग्स व्हाट दे कैन डू, कि दे हैव टू रिकग्नाइज द बिगनिंग, उन्हें ये पता हो कि शुरू में क्या हुआ है, व्हाट हैज़ बीन डन इन द मिडल, मिडल का क्या हुआ है, और स्टोरी का एंड कैसे हुआ है। Why this is going to be we have to do basically, it is the possible and this is the challenging to process the complex textual information without breaking it down into smaller pieces, as I already submitted this line sentence to all of you already, कि वो उनके लिए जो मुमकिन नहीं है कि वो जो हमारे पास कंटेक्सचुअल या टेक्सचुअल जो इन्फॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे हिस्सों में किए बगैर वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि उसको वो बिट ऑफ पीसेस में करके छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पीसेस में करके वो गेन कर सकते हैं। अब वो प्रोसेस क्या करेंगे, यूज बिगनिंग, मिडल एंड बॉक्सेस। उनके लिए हमारे पास जो है वो उनको वर्ड वेब जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उनको 3 बॉक्स बना दिए जाएंगे सेपरेटली। फर्स्ट बॉक्स जो है वो नो डाउट वो हमारे पास बिगनिंग का होगा और सेकंड वाला बॉक्स जो है वो मिडल का होगा और तीसरे वाला जो बॉक्स है वो एंड का होगा। तो हमने स्टोरी को उनके लिए 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसमें बिगनिंग और देन उसका जो है वो मिडल पार्ट है और देन उसका जो एंड वाला पार्ट है। और बच्चों को वर्ड वेब प्रोवाइड किए जाएंगे और रियल लाइफ पिक्चर जो है वो दी जाएंगी ताकि, और उनको जो है वो स्क्राइब भी प्रोवाइड किया जाएगा और उनको ये चीज़ें दी जाएंगी ताकि वो रियल लाइफ की पिक्चर्स को देखते हुए वो पिक्चर्स की मदद से ये बता सकें कि कहाँ पर हमारे पास स्टोरी जो है वो उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था और दरमियान की प्रोसेसिंग क्या है और व्हाट हैज़ बीन डन इन द एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, अब वो क्लास के सामने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उनके लिए जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो कैसे पॉसिबल होगी। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ये है कि वो बेसिकली दे कैन यूज़ द बॉक्सेस और वो पिक्चर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉक्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो बॉक्सेस के ज़रिए रिप्रेजेंट कर देंगे या फिर जो है वो उनके पास फ्लैश कार्ड्स हैं या तस्वीरें जो हैं उनके ज़रिए वो बता देंगे कि क्या उनके लिए वो कि किस तरह से स्टोरी शुरू कहाँ से हुई है। मिड में वो मिड को वो पिक्चर्स के ज़रिए जो है वो शो कर देंगे और एंड वाला जो है वो पोर्शन वो भी पिक्चर्स के ज़रिए शो कर देंगे या फिर जो बॉक्सेस बनाए हुए थे उनके अकॉर्डिंगली वो जो है वो बच्चों को बता देंगे। ओके, इसके बाद सेकंड जो हमारे पास पोर्शन पॉसिबल है दैट इज़ द नॉवल स्टडी, कि अगर कुछ बच्चे जो हैं वो नॉवल स्टडी कर रहे हैं तो चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम के लिए हमारे पास जो अडेप्टेशन है वो किस तरह से मुमकिन है। बेसिकली इस केस में नॉवल स्टडी के केस में what we can expect from the typical children or you can say from the normal children. First of all, this is we can expect from the normal that they can read the novel and summarize one chapter of a novel, कि एक वक्त में अगर हम एक टास्क देते हैं नॉर्मल बच्चों को नॉवल स्टडी का तो उनके लिए पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि वो इतना काम कर सकते हैं कि वो एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं, चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है वो हमें जो है वो उसको समराइज कर सकते हैं। अब लेकिन हम डाउन सिंड्रोम में उसके उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम ये उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पूरे चैप्टर को समराइज करने की बजाय वो सिर्फ हमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं एट द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द लेसन जो डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं वो उन क्वेश्चन में से कुछ कोई से 5 सवालों के जो है वो जवाब दे सकें, उनको वो हम उनके लिए टारगेट जो होगा और वो उनको जो है वो असाइन कर सकेंगे। ठीक है, अब इसका प्रोसेस किस तरह से होगा कि वो सीखेंगे किस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल
दे हैव टू लिसन टू टैब्ड चैप्टर, कि उनके पास जो टैब्ड चैप्टर है उसको वो एक से ज़्यादा दफ़ा सुनेंगे, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि वो बार बार इसको सुनेंगे। और जो हमारे पास स्पेसिफिक टेक्स्ट है उसको वो हाईलाइट करेंगे, और जो मेन करैक्टर है उसके बारे में उसको ड्रॉ करेंगे कि मेन जो करैक्टर है उस नावल का वो क्या है, उसको ड्रॉ करेंगे। और उस उनके लिए वर्कशीट्स बनाई जाएंगी, और वर्कशीट इस तरह से बनाई जाएंगी जिनके अंदर उनको एक तरतीब के साथ जो है वो बताया गया होगा। हमने जो जिस तरह से नावल के अंदर स्टोरी प्ले हो रही है, हम उसी तरह से उसी तरतीब के साथ उन्हें जो है वो वर्कशीट बनाएंगे, और उस वर्कशीट के अंदर जो है वो ब्लैंक्स हमने छोड़ी हुई होंगी। वो जो उसने हाईलाइटेड टेक्स्ट है इसके ज़रिए वो हमारे पास आगे बढ़ेंगे, और जहाँ पर उनको मेन करैक्टर वाली चीज़ें आएंगी वहाँ पर वो मेन करैक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। बट उनका जो सारा काम जो है वो वर्कशीट के ज़रिए हो रहा होगा, और वर्कशीट को वो फिल करेंगे, जो खाली जगह हमने छोड़ी होंगी उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली वो खाली जगह वो फिल करेंगे, और वहाँ पर वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अंडरस्टैंड की होगी उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर वो फिलअप कर देंगे। अब उन्होंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करना है? डिमॉन्स्ट्रेट के लिए उनके पास जो है वो 3 तरीके हैं यहाँ पर, और वो 3 तरीके क्या हैं कि जो चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम हैं, एक तो ये है कि हम उनके लिए आसानी कर देंगे कि वो मल्टीपल चॉइस जो है वो ऑप्शन ले सकते हैं, कि हम उनको मल्टीपल चॉइस दे देंगे और वहाँ पर वो इजीली बता सकेंगे, चूँकि उन्होंने टेक्स्ट को एक से ज़्यादा दफ़ा सुना है, और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो डिटेल के साथ जो है वो उसको उसके साथ बात नहीं कर सकते। बिकॉज मोस्टली जो हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वहाँ पर जो शायद कम है मसाइल, बट जैसे ही वो जो है वो सीवियर और प्रोफाउंड की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बट इनके लिए पॉसिबिलिटी यही है कि ये MCQs के ऊपर उनसे हम फीडबैक ले सकते हैं, हम उनको फिल इन दी ब्लैंक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर हमसे ऑरली पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है, मेन कैरेक्टर्स क्या थे, और स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे एंड हुई है। जैसे प्रीवियसली हमने देखा है कि हमने उनको बॉक्सेस बनाकर स्टोरी का मतलब का स्टार्ट मिडल और एंड दिया है, लेकिन यहाँ पर हमसे ओरल पूछ सकते हैं कि उनको ओरली उनको क्या समझ आई है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो बिकॉज इनका इशू जो है कि बिकॉज दे आर फेसिंग द कम्प्लेक्स टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का इनका इशू होता है। तो इनके लिए जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है वो हम उसको उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें जो ऑप्शंस को काउंट करना पड़ेगा, और उनकी प्रॉब्लम्स को इसी तरह से ओवरकम किया जा सकता है। अब हमारे पास ये है कि अगर हमने इन्हें स्पेलिंग सिखाने हैं तो वो हमारे पास जब वो किस तरह से पॉसिबल होगा कि हम उनको स्पेल सिखा सकें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल चिल्ड्रन से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक वक्त में कि दे हैव टू मेमोराइज 18 थीम स्पेलिंग वर्ड फॉर अ फ्राइडे टेस्ट, कि अगर लेट्स से हमने उनको एक टेस्ट दे रखा है और उन्होंने डिफरेंट 18 थीम्स जो है वो कि डिफरेंट स्पेलिंग जो है वो उनको मेमोराइज करना है, और उनकी डिक्टेशन जब हमने कोई एक दिन लेट्स से फ्राइडे का मैंने नाम दे दिया कि हमने फ्राइडे को उनसे टेस्ट लेना है, ठीक है। लेकिन what we can do for the children and the student learners with the Down syndrome, उनके लिए पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि we have to choose the 7 one syllable theme spellings words for our Friday test, कि उनको हम एक ही syllable के जो है वो हम दे सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स। और ये 7 का जो फिगर हमने दिया है दिस इज जस्ट अप्रॉक्सीमेट दिया है, हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है वो 8 भी कर लें, हो सकता है कुछ बच्चे 9 कर लें, लेकिन ये मुमकिन भी हो सकता है कि कुछ बच्चे सिर्फ 5 को जो है वो कर सकें, वो 5 से ज़्यादा ना कर सकें। ये भी जो पॉसिबिलिटी है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो है वो इन वेरी करती है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो कितना उसके लिए गेन कर सकते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट अब हमारे पास है कि ठीक है, ओके, हमने ये डिसाइड कर लिया कि वो 7 मंथ्स लेवल जो है वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, याद कर सकेंगे, मेमोराइज कर सकेंगे, जिनकी साउंड जो है वो सिमिलर होंगी और वो उनके लिए हमारे पास आसानी होगी उनको याद करना। अब प्रोसेस का क्या होगा कि हम किस तरह से देख सकते हैं, तो कंप्रीहेंशन चेक बेसिकली हम इसके ऊपर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और कंप्रीहेंशन चेक कैसे इस्तेमाल करेंगे, दे कैन रेज द लेटर्स, उसके लिए सैंड बॉक्स इस्तेमाल हो सकता है और गेम्स इस्तेमाल हो सकती हैं, लाइक बिंगो और हैंगमैन जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। और जो उनकी जो पर्सनल डिक्शनरी है उसके अंदर जो हम वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब हम इनके उनसे इसको प्रोड्यूस किस तरह से करवाएंगे, उनसे हम फीडबैक कैसे लेंगे, और फीडबैक लेने का तरीके का होगा, जब आप यूँ कह लेंगे हम उनसे असेसमेंट जो है वो हम किस तरह से उनसे करेंगे। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि हम स्क्राइब्स उनसे जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर हम लेटर टाइल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर लेंगे। लेटर टाइल्स हो सकती हैं, हमारे पास फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, उनको उनको जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनके लिए। और लेटर टाइल्स भी हो सकती हैं, शेप्स और वर्ड शेप्स भी हो सकती हैं, पेपर के ऊपर भी आप शेप्स बना सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो उनसे की जा सकती है। जो नेक्स्ट हमारा है वो जो हमारे पास है कि हम साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें हम इनसे किस तरह से लेंगे, कि साइंस के सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि हम साइंस के सब्जेक्ट में किस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं और इन चिल्ड्रन से हम किस तरह से इनको काम करवा सकते हैं। इसमें मैंने फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल ली है कि अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं और उनके लिए हमने ये तय किया है कि वो फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस सीखेंगे। अब हम ये तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं नॉर्मल और टिपिकल स्टूडेंट से, टिपिकल लर्नर से हमारी ये ऑप्शंस हैं। बट व्हाट इज पॉसिबिलिटी विद द डाउन सिंड्रोम? अगर नॉर्मल चिल्ड्रन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सीख रहे हैं, तो जो चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स विद डाउन सिंड्रोम हैं उनके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो इतना कर लें कि वो ये देख सकें कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कैसे करते हैं और उनको सनलाइट की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ती है, और वो पानी कहाँ से लेते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म कब हो जाते हैं। आप यूँ कह लें जाके वाई द प्लांट्स डाई, कि उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा क्यों हो जाता है, उसकी रीज़न्स जो हैं वो क्या होती हैं। अब ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है और ये हमारी एक्सपेक्टेशन है चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम से। मैंने बार बार एक ये बात कही है कि हमारे लिए ये मुमकिन है कि एक जगह पर वो ऐसा काम कर सकते हैं कि जहाँ पर मैंने जैसे पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं कि अगर स्टूडेंट्स, इनकी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो प्लांट्स को ग्रो करना सीख सकते हों और उनको ये पता चल जाए कि सनलाइट क्यों ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि उन्हें ये पता चल जाए कि पौधे पानी कहाँ से लेते हैं और ये जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो ख़त्म क्यों हो जाते हैं। लेकिन अब इसका प्रोसेस क्या है, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ स्टूडेंट्स की कुछ बेहतर भी हो सकती है और ये भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ जगहों पे कम भी हो जाए और कुछ जगहों पे लर्निंग का रेट जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर भी हो सकता है। अब प्रोसेस इसमें हम क्या करेंगे उनकी लर्निंग के लिए कि हैंड्स ऑन प्लांट अ सीड एंड पिक्चर समरीज ऑफ ग्रोथ। अब उसके लिए ये है कि हमारे पास एक तो ये होता है कि हैंड ऑन प्रैक्टिस हमारे पास की जा सकती है, और उस हैंड ऑन प्रैक्टिस के अंदर जो है कि आप एक सीड लें और सीड लेकर जो है वो उसको आप जो है वो छोड़ दें ग्रो करने के लिए। आप जो है वो उसको ज़मीन में दबाएं और वो बाद में उसकी स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसकी तस्वीरें लेता रहे और उसकी जो है वो समरीज की जो है वो ग्रोथ की समरीज बनाता रहे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उसको ये सारी चीज़ें वीडियोस के ज़रिए भी आप उसे दिखा सकते हैं और उसे फिर डिफरेंट स्टेप्स के ज़रिए भी दिखाया जा सकता है। और दूसरा ये है कि हम इसको फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए भी कर सकते हैं।
ये भी हमारे पास मुमकिन है। तो लेकिन बहुत अच्छा होगा कि अगर हमारे पास हम इसकी वीडियो इस्तेमाल कर सकें और बच्चे को हम पहले सीड को जो है वो किस तरह से हमने प्लांट करना है और किस तरह से वो निकलता है, तो फिर किस तरह से हम उसको पानी देंगे और वो उसकी डिफरेंट स्टेजेस जो है वो किस तरह से होंगी और वो कैसे ग्रो करेगा वन बाय वन, किस तरह से वो ज़मीन से निकलेगा, फिर उसको पानी की ज़रूरत कब होगी और व्हेन वी हैव टू गिव द फर्टिलाइजर्स, और बाकी जो एक ज़रूरियात हैं एक पौधों की वो किस तरह से हमारे पास पूरी होंगी और वो पानी कहाँ से लेंगे। तो ये हमारे पास उसको किया जा सकता है। और फिर जो हमने आखिरी बात की है कि ठीक है कि वो पानी कहाँ से लेंगे और उनको ज़रूरियात ये हम बताएंगे उसको साथ साथ स्टेप्स में जब हम ग्रोथ की बात कर रहे होंगे कि जो ग्रो करने हैं और प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं और उनको सनलाइट के ज़रिए वो ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर हम उसको प्लांट्स के डाई होने का दिखाया जा सकता है तो हम उसको कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं कि एक प्लांट को पानी मिला है और एक को पानी नहीं मिला। जिसको पानी मिला है वो जिंदा है और जिसको पानी नहीं मिला उसकी जो सिचुएशन है वो अदरवाइज है। अब इसके ऊपर भी उनसे डिमॉन्स्ट्रेशन हम कैसे ले सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन में हमारे लिए पॉसिबिलिटी ये है कि हम उनसे ऑरल रिपोर्ट ले सकते हैं और उनसे चीज़ों को कंपेयर करवा सकते हैं उनके सामने रखकर, या फिर उनके साथ एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि हम उनसे फिल इन दी ब्लैंक्स के ज़रिए जो है वो काम करवा सकते हैं। हम उनको ब्लैंक्स छोड़ दें और उनके लिए वर्कशीट्स डेवलप कर लें और उन्हीं वर्कशीट्स के ऊपर जो है वो अपनी फीडबैक दे देंगे और वो उनको ब्लैंक्स को फिल कर देंगे और उससे जो है वो उनकी एवेल्यूएशन और उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो मुमकिन हो सकेगी। अब हमारे पास है कि अगर एक साइंस प्रोजेक्ट हम बच्चों को देते हैं तो उसके ऊपर वो अडॉप्टेशन कैसे पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास ये है कि चूज अ मैमल एंड 5 सब टॉपिक्स टू रिसर्च एंड रिपोर्ट ऑन। जहाँ पे हमने मैमल्स चुने हैं और मैमल का टाइटल चुना है और डिफरेंट 5 जो वो टॉपिक्स लिए हैं जिनके ऊपर जो वो रिसर्च प्रोजेक्ट जनरेट करना है। अब यहाँ पर तो अगर हमने 5 सब टॉपिक्स लिए हैं तो जो चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम है वो 5 तो नहीं कर सकेंगे। तो इट्स अराउंड टू एज यूजुअल, जैसे हमने ऊपर देखा है उनके लिए इतना ज़्यादा जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो हमने जहाँ पर 3 सब टॉपिक लिए हैं। अब इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हम राउंड टू 10 क्वेश्चंस बनाएंगे उन टॉपिक्स के ऊपर और उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। उनसे पूछेंगे कि उनको क्या समझ आ रही है। आप यूँ समझें कि पहले अगर हमने 10 क्वेश्चंस बना लिए हैं और उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, फिर उनको हम कैटेगराइज कर लेंगे और फिर हम कैटेगराइज करने के बाद हम 3 स्टेप जो है वो उसके लिए उनकी नेक्स्ट वर्किंग के लिए 3 स्टेप्स बनाएंगे और हर स्टेप के लिए हम फिर कार्ड जनरेट करेंगे। हर कैटेगरी के लिए जो हम कार्ड जनरेट कर लेंगे और जो कार्ड जनरेट करेंगे वो जो कार्ड की हमारे पास एक कलेक्शन हो जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर जो है वो मौजूद हो जाएगी। और वो क्या करेंगे, अब इसके ऊपर वो एक स्क्रैप बुक जो है वो तैयार करेंगे और उसके उनके वो एक स्क्रैप बुक बना लेंगे और उसके ऊपर जो है वो अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रैप बुक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और उस इन्फो के अकॉर्डिंगली जो कैटेगराइज उन्होंने की होगी, कैटेगराइज करना सीखा होगा, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए उन्होंने सीखा होगा, उसको वो अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर पेस्ट करेंगे। और दोबारा से मैं फिर इसको थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ एक दफ़ा कि बुनियादी तौर पर अब हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया था कि जो चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करना इतना आसान नहीं होता, उनके लिए मसाइल होते हैं। वो उस तरह से सिंपली उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो हमने उनके लिए एक तो जैसे हमने 9 डिफरेंट टाइप्स भी सीखी थी एडेप्टेशन की, जिसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि हम उनमें क्वांटिटी नंबर ऑफ आइटम्स कम कर देते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स कम कर देते हैं तो यहाँ पर भी हमने 5 की जगह 3 कर दी और फिर यहाँ पर जो है वो उसके लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के अंदर भी हमने उसको जो है वो डाउन किया है
हमने उनके लिए डिफरेंट क्वेश्चंस बना लिए हैं, उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद चूंकि अब 3 सब टॉपिक्स हैं, तो हमने 3 ही उनकी कैटेगरीज बना ली हैं। 3 कैटेगरीज बनाकर हमने चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को उनको अलग-अलग करना सिखा दिया है, और फिर उनसे फाइनली हम कहेंगे वो एक स्क्रैप बुक बनाएं और उसके ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन को पेस्ट करें। अब उनकी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है और जो डिस्प्ले है, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि हम उनके लिए वीडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि वो अपनी स्क्रैप बुक को जो है वो डिस्प्ले कर सकेंगे, उसको जो है वो बता सकेंगे औरली, ठीक है, उसको अपनी जो स्क्रैप बुक बनाई है उसको डिस्प्ले कर सकेंगे। और दूसरा जो है कि वीडियो टेप के जरिए जो है प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये मुमकिनात में से उनके लिए, चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम के लिए ये मुमकिन हो सकता है। अब आगे हम चलते हैं कि सोशल स्टडी का अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो सोशल स्टडी के अंदर उनके लिए क्या मुमकिन है। जहाँ पर ये है, सबसे पहली बात जो हम नॉर्मल स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि कनाडा के जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके बारे में लर्न कर सके। लेकिन जो चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम हैं, स्टूडेंट्स विद डाउन सिंड्रोम हैं, वो किसी एक, लेट्स से वो कैपिटल के बारे में बात करेंगे, तो कैपिटल का वो नाम बताएंगे। अब इसके लिए प्रोसेस क्या हो सकेगा कि स्टूडेंट इस बात पे फोकस करेगा कि अब उसने करना क्या है, ठीक है, वो किस तरह से जो है वो मैप के ऊपर घूमेगा। अच्छा, जहाँ पर ये भी फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम, एक चीज़ है कि हम पूरे ग्लोब के ऊपर, हमारे पास ग्लोब मौजूद है, हम उसे पूरे के पूरे जो है वो ग्लोब के ऊपर दे देते हैं चीज़ें, कि वो पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर मैयर करे, ग्लोब के ऊपर देखे कि चीज़ें कहाँ पर जो है वो लाई कर रही हैं। दूसरा ये है कि हम उसे स्पेसिफिक एरिया दे देते हैं, उसे कहते हैं कि आप इस एरिया में से जो है वो चूज़ करो। अच्छा, दूसरी एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमने नॉर्मल चिल्ड्रन को जो असाइनमेंट दी है कि वो पहले तो जो है वो कनाडा के सारे प्रोविंसेस बताएं, और उनमें से वो प्रोविंस भी बताएं जो जिसमें उसका कैपिटल लाया करता है। लेकिन जहां पर हम उससे सिर्फ जो है वो ये पूछ लें कि वो इंडिकेट कर दे ग्लोब के ऊपर उस एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कि उसके जो प्रोविंसेस है वो कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं, या उसके नाम क्या है, वो वहाँ पर उसको बता दे। तो ये हमारे पास जो है वो मुमकिन हो सकता है। जहाँ पर फिर ये भी हमारे पास ये मुमकिन हो सकता है कि वैसे तो शायद उसको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद ना रहें, तो वो चीज़ों को डिस्टेंस के साथ और चीज़ों की सिमिलैरिटी के साथ जो है वो याद रख सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि मैप ऑफ नेबरहुड विद होम, स्कूल, स्टोर एंड स्पोर्ट्स, और मेजर डिस्टेंसेस रेट कम्युनिटी टू सिटी, डाउनटाउन और ज़ू, रिवर, माउंटेन्स वगैरह, जो इस तरह की चीज़ें हैं उनके साथ वो मैच करके काम कर सकता है। अब उसके डेमोंस्ट्रेशन के लिए जो है वो क्या हमारे पास मुमकिन है, दूसरा उसमें ये है कि वो या तो मैप इस्तेमाल कर सकता है, और फिर जो है वो 3D मॉडल इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद ये है कि उसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि जो उसके पास फ़ोटो एल्बम है वह इस तरह इस्तेमाल कर सकता है कि उसको हम ये एक कैटेगरी जो बनी हुई है कि वेयर आई गो एंड व्हाट आई डू इन माय कम्युनिटी, के वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो चीज़ों को बता सकता है। यानी अब वो प्रोविंसेस बताने की बजाय, या फिर प्रोविंसेस में से कैपिटल बताने की बजाय, हम उसे ये थोड़ा सा बता सकते हैं कि अगर वो हमारे पास यानी वो रेफरेंस के साथ जो है वो बात कर सकता है। अब रेफरेंस के साथ बात कैसे कर सकता है कि वो बता सकता है कि अपने 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 नेबर को आइडेंटिफाई कर सकता है, स्कूल को आइडेंटिफाई कर सकता है, जहाँ से वो ग्रॉसरी करते हैं, जो चीज़ें अपनी परचेज करते हैं वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। बट उसके लिए शायद जो कनाडा और ग्लोब के ऊपर जो उस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है। या फिर अपने स्कूल्स के साथ वो चीज़ों को कंपेयर कर सकता है, जहाँ वो रोज़ जाता है, उसे आइडिया हो गया तो उसके साथ वो बता सकता है। तो यानी एक तो उसकी एक्टिविटीज़ के साथ हम इसको कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम उसको ये देख सकते हैं कि वो चीज़ें क्या परचेज़ करता है और इसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। एक तो उसकी लोकेशन और दूसरा उसकी एक्टिविटी हम उससे पूछ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर।
और इसके अंदर हमने ये देखा है कि जो चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम है उनके लिए हम अडेप्टेशन किस तरह से कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इन स्लाइड्स के अंदर कि आपको बताया जाए कि किस तरह से पॉसिबिलिटी है, अडेप्टेशन कैसे हो सकती है चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम की। तो आई एम वेरी होपफुल कि यू हैव एंजॉय दिस लेक्चर और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। बट फिर भी अगर आप कुछ समझते हो कि कुछ तशनगी रह चुकी हैं और अभी भी थर्स्ट बाकी है और अभी किसी किस्म की आप जो है वो कन्फ्यूजन कहीं पे फेस कर रहे हैं, तो यू कैन कॉल मी एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आई विल बी अवेलेबल फॉर द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज ऑल फॉर द डे। जज़ाकल्लाह।